جب وہ اسرائیلی سردار اس علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں اونچی اونچی فصیلیں، قلعے اور بڑے بڑے درخت دیکھے۔ انہوں نے آج تک ایسا عظیم اور بلند منظر نہیں دیکھا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور شہر کی فصیلوں پر اس کی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ اچانک انہوں نے غور کیا کہ ان قلعوں پر بڑے بڑے اونچے انسانوں کے سائے دکھ رہے ہیں اور سائے لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ خوف کے مارے کانپتے ہوئے انہوں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ واقعی دیو قامت انسان تھے۔ تاریخ انسانیت میں کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جنہیں اللہ نے طاقت و قوت، قد و قامت اور وسائل و اقتدار سے نوازا اور انہیں غیر معمولی برتری عطا فرمائی، مگر جب یہی نعمتیں شکر کے بجائے غرور بن گئی تو وہی طاقت ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ قوم جبارین بھی انہی قوموں میں سے ایک تھی جنہیں عمالقہ بھی کہا جاتا ہے اور جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید اور دیگر کتابوں میں ملتا ہے۔ قوم جبارین کا نام ہی ان کی فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ جبار کے معنی ہے زبردست، طاقتور، حد سے بڑھ جانے والا، اور یہ قوم واقعی جسمانی طور پر طاقتور اور ناقابل شکست تھی۔ ان کے قد لمبے، جسم مضبوط اور دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ خود کو زمین کے سب سے عظیم الشان قوم سمجھتے تھے اور یہی سوچ اور غرور ان کے زوال کا سبب بنا۔ جبارین کو عمالیق یا عمالقہ بھی کہا جاتا تھا۔ روایتوں کے مطابق عمالیق ایک طاقتور شخص تھا جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جناب عیس کے بیٹے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمالیق ایک ناجائز رشتے سے پیدا ہوا تھا۔ عمالیق اور اس کے اولاد ہزاروں کی تعداد میں ملک کنعان اور اس کے اطراف میں آباد ہو گئے تھے، اور اس علاقے میں ان کا کافی زور اور دبدبہ تھا۔ یہ قوم ایک سرسبز اور زرخیز علاقے میں آباد تھی جہاں بلند پہاڑ، مضبوط قلعے اور وسیع میدان تھے۔ قوم عمالقہ نے اشوری بادشاہوں کے دور میں فلسطین اور شام پر قبضہ جما لیا تھا۔ انہوں نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر ایسی بستیاں بسائی جو عام انسانوں کے لیے ناقابل تصور تھی۔ ان کے قلعے آسمان سے باتیں کرتے تھے اور ان کے دروازے لوہے اور پتھر سے بنے ہوئے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمیں اس روئے زمین پر کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ کمزوروں کو حقیر سمجھتے، مظلوموں پر ظلم کرتے اور اپنے سے مختلف سوچ رکھنے والوں کو کچل دیتے۔ ان کے ہاں انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ یہودی مدراس کے مطابق دنیا کی ہر قوم کا ایک نگہبان فرشتہ ہے سوائے دو اقوام کے۔ ایک قوم بنی اسرائیل ہے جس نے فرشتہ میکائیل کو چھوڑ کر خود اللہ کو اپنا نگہبان چنا، اور دوسری قوم عمالیق ہے۔ اس لیے عمالیق کو مکمل طور پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ زمانہ قدیم سے ہی جادوگری اور کالے علوم میں ملوث تھے اور پتھر کے مقدس ستونوں پر اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قوم جبارین کے لوگ انتہائی دراز قد، خون خوار اور وحشی فطرت کے مالک تھے۔ یہ لوگ شام سے مصر تک خون خرابہ کرتے تھے اور دوسرے چھوٹے چھوٹے اقوام کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ ان کے جسم ایسے مضبوط تھے گویا پتھر سے تراشے گئے ہوں۔ ان کے شہروں میں اونچی دیواریں، پہاڑوں پر بنے قلعے اور ایسے دروازے ہوتے تھے جنہیں کوئی لشکر توڑ نہ سکتی تھی۔ ان میں قوت و طاقت اس قدر ہوتی تھی کہ ایک آدمی بآسانی ایک بڑے پتھر کو اٹھا سکتا تھا۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر ایک نئے ملک کی طرف لے جا رہے تھے تو ایک اور مصیبت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مصر سے آزادی ملنے کے بعد اب ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن اب انہیں ایک اور خطرے کا سامنا تھا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ایسے ملک کا وعدہ دیا تھا جو ان کا اپنا ہوگا اور وہاں وہ آزاد ہو کر رہیں گے۔ یہ ملک شام کا علاقہ تھا جسے قرآن مجید میں ارض مقدس کہا گیا ہے، اور اسی علاقے میں جبارین آباد تھے۔
आज तक उनके इलाके में किसी कौम ने भी हमला करने का ना सोचा था। बड़े बड़े हुक्मरानों और लश्करों में भी वो कुव्वत नहीं थी कि वो जब्बारीन का सामना कर सके। लिहाजा ये बनी इसराइल के लिए एक आजमाइश साबित हुई। कुरान पाक के अंदर सूरह माइदा में इस कौम का जिक्र कुछ यूं हुआ है, ऐ मूसा, वहां एक निहायत ही ताकतवर कौम रहती है और जब तक ये वहां से नहीं निकलती तुम कभी भी वहां दाखिल नहीं होना। बनी इसराइल के लोग जो अभी अभी मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुए थे वो अंदर से अब भी कमज़ोर थे। वो ऐसी कौम के खिलाफ जंग करने से घबरा रहे थे जो ताकत व कुव्वत में बेमिसल थी और उनकी कद व कामत भी आम इंसानों से बड़ी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये इम्तिहान सख्त है, इसलिए उन्होंने पहले तहकीक के लिए 12 सरदारों को मुंतखब किया। आपने हुक्म दिया कि जाओ और उस शहर के हालात मालूम करके आओ। वो 12 सरदार जब उनकी बस्तियों की तरफ पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां के बाशिंदे पहाड़ जैसे लगते हैं। रिवायतों में ये भी बयान हुआ है कि उस बस्ती में पैदा होने वाले अंगूर के गुच्छे को उठाने के लिए कई आदमियों की जरूरत पड़ती थी। गोया उस इलाके में कुदरती तौर पर पेड़ पौधे और हैवान और इंसान सब देवनुमा और बड़े बड़े हुआ करते थे। एक रिवायत के मुताबिक जब जब्बारीन के कुछ आदमियों ने उन इस्राएली सरदारों को देखा तो उन्हें पकड़ लिया और अपने उंगलियों में उठा लिया जैसे कोई कीड़े उठा लिए हों। वो आपस में कहने लगे, देखो ये हैं वो लोग जो हमसे लड़ने आए हैं। वो सरदार डर से कांपते हुए किसी तरह वहां से छूटे और अपनी जान बचाकर भागे। जब ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आए तो खौफ के मारे कांप रहे थे। उन्होंने कौम बनी इसराइल में ये बात फैला दी कि वहां तो ऐसे लोग हैं जिनसे लड़ना मौत के मुंह में जाने के बराबर है और वो हमें अपने पैरों तले मसल देंगे। चुनांचा बनी इसराइल में कोहराम मच गया। ये लोग जिन्होंने अभी अभी अल्लाह की कुदरत देखी थी कि किस कदर फिरौन जैसे हुक्मरान और उसके लश्कर को अल्लाह ने समुंदर में गर्क कर दिया था, ये लोग बुज़दिल बन गए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर फरियाद की कि ऐ मूसा, इससे बेहतर तो हम मिस्र में गुलाम थे, तुम तो हमें इस सहरा में मरने ले आए हो। अगर हम इनके इलाके में जाएंगे तो वो जब्बारीन हमें मार डालेंगे। इससे बेहतर तो ये था कि हम मिस्र में ही मर जाते। इस मौके पर सिर्फ 2 सरदार ऐसे थे जिनका ईमान साबित कदम रहा, एक हजरत यूशा बिन नून और दूसरे कालिब बिन यूहन्ना। ये दोनों हजरात खड़े हुए और उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि ऐ लोगो, खौफ ना खाओ, अल्लाह की कसम फतह तुम्हारी ही होगी। वो लोग जिस्मानी तौर पर बड़े जरूर हैं लेकिन उनके दिल कमजोर हैं क्योंकि उनके पास अल्लाह की मदद नहीं है, जबकि तुम्हारे पास अल्लाह है। लेकिन बनी इसराइल ने उनकी एक ना सुनी और उल्टा उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, जब तक वो जब्बारीन वहां मौजूद हैं हम हरगिज उस शहर में दाखिल नहीं होंगे। तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए और उनसे लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। उनके इस जुमले और बदबख्ती का जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है। अपनी कौम की इन अल्फाज से मूसा अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हुए और अपने ही लोगों से बेजार हो गए। बनी इसराइल के कमजोर ईमान और बुज़दिली देखकर अल्लाह ने हजरत मूसा पर वही भेजी कि ऐ मूसा, अब ये कौम 40 साल तक उस मुकद्दस जमीन में दाखिल ना हो सकेगी क्योंकि वो जमीन उन पर हराम कर दी गई। अब ये इसी सहरा में भटकते रहेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बनी इसराइल सालों तक सहरा की खाक छानते रहे। रिवायतों के मुताबिक बनी इसराइल मैदान तिया के सहरा में सुबह सवेरे सफर शुरू करते, पूरा दिन चलते रहते कि शायद अब कोई बस्ती मिल जाए, लेकिन जब शाम होती तो वो घूमकर उसी जगह आ जाते जहां से उन्होंने सुबह सफर शुरू किया था। और ये उन पर अल्लाह का एक अज़ाब था। इस 40 साल के अरसे में वो लोग हलाक हो गए और सहरा के रेत में दफन हो गए जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को वो गुस्ताखाना जुमले कहे थे। इसी अरसे में हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की भी वफात हो गई और अब बनी इसराइल की क़यादत
यूशा बिन नून के हाथों में आई। उनकी क़यादत में बनी इसराइल ने जब्बारीन के शहरों के दीवारों को तोड़ डाला और इस अजीमुशान कौम के लोगों को शिकस्त दी। जब्बारीन के बड़े बड़े किले गिर गए, उनका घमंड टूट गया और ईमान के सामने उनकी ताकत हार गई। इस तरह बनी इसराइल को फतह नसीब हुई। इस शहर पर इसराइलियों का परचम लहराया और किनान के साथ फलस्तीन और शाम का पूरा इलाका भी फतह हो गया। यूं अल्लाह का वादा पूरा हुआ और बनी इसराइल को एक मुकद्दस जमीन अता हुई। लेकिन इसके बाद भी जब्बारीन के बहुत सारे लोग बाकी बच गए, जो अर्ज़ मुकद्दस के गिरदोनवाह के इलाके में आबाद थे और आइंदा सैकड़ों सालों तक पे दर पे इसराइलियों पर हमला करते रहे और लूट मार मचाते रहे। जालूत, जिसे बाइबल में गोलियत कहा गया है, एक इंतहाई ताकतवर और जालिम जंगजू था। इसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर भी मौजूद है। जालूत भी जब्बारीन के बचे हुए लोगों में से था, इसलिए वो भी इंतहाई कद आवर और ताकत व कुव्वत का मालिक था। बादशाह साउल ने जब जालूत और उसके लश्कर से जंग की तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर कामिल भरोसा करते हुए गुलैल से जालूत को निशाना बनाया और एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। बाद में शमून नबी की औलादों में से 500 मर्दों की एक जमात ने उन बाकी अमालिकियों को जो बच गए थे कत्ल किया, जो कि पहाड़ी इलाके कोहे शईर में रहा करते थे। इस तरह कौमे जब्बारीन इस सफ़ाए हस्ती से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। लेकिन आज इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े में बहुत सारे इजरायली सियासतदां और रब्बियों ने फ़लस्तीनी मुसलमानों को जब्बारीन और अमालिकियों से तशबीह दी और ये कहा कि फ़लस्तीनी ही अमालिकी हैं, क्योंकि फ़लस्तीनी मुसलमान यहूदियों को सरजमीन इसराइल में बसने से रोकते हैं और उन्होंने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा जमा रखा है, जबकि हकीकत ये है कि फ़लस्तीन की सरजमीन पर जुल्म व बर्बरियत और कब्ज़ा करने वाले खुद यहूदी कौम है। यहूदी रहनुमाओं ने इस नफरत और झूठे तारीख को फ़लस्तीनी मुसलमानों पर चस्पा करके इस कदर नफरत और शर अंगेज़ी फैलाया कि साल 1994 में शब्बत के त्यौहार के मौके पर यहूदियों ने अमालीक की कहानी पढ़ी और इसके फौरन बाद शुमाली इलाके में 29 फ़लस्तीनी मुसलमानों को कत्ल किया गया था। हकीकत तो ये है कि गासिब इजराइल का बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर जुल्म, शहरियों पर तशद्दुद, घरों की तबाही, बस्तियों पर बमबारी खुद उन्हें अमालिकियों और जब्बारीन से मुशाबा करती हैं और दरअसल कौम मूसा की तरह हक और सच के लिए लड़ने वाले मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, जो आज वक्त के जब्बारीन का सामना कर रहे हैं।